Welcome Sarah and Basim to this webinar. Thank you for joining us today. थोड़े से मैं moderation rules यहाँ पे set out कर लेता हूँ and then I'll just quickly move on towards introducing our hosts. So first of all जो comment section है हमने off किया हुआ है उसके ऊपर we've pasted a Slido's link जो जिसने भी सवाल पूछने हैं comments डालने हैं we'd appreciate everyone to participate in this webinar so that we can make it more productive. वो Slidos में जाके अपने comments जो हैं वहाँ पे post कर लें for us to later view on this and we'll give you answers on those questions. Secondly, Sarah, how are you? I'm doing well. How are you? Sarah is basically heading marketing with 101 Group, our very new partners in the platform. Sarah, आपने marketing भी देखी है and you're a graduate from LUMS as well. तो आप कुछ बता सकती हैं कि being in that industry in real estate आपका कैसा experience है और audience को भी आप बता सकते हैं about yourself. Thank you so much, Waleed. So basically, working in real estate has been quite the eye opener because then you kind of realize that you could be doing everything, but when it comes to really parking your wealth somewhere and making having the right sort of capital gain and really growing your wealth, real estate is the best option. And because I've seen the industry so closely and I've been working with 101 Group for more than a year now, so I think, and the fact that I'm young, like I'm in my 20s, and having that sort of exposure in your early years, I think it's very financial independence, financial freedom, really kind of makes the part of your life. And I think सबसे ज़्यादा ये भी चीज़ है कि because I have also आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, there's so much content that one is consuming about financial advice and how where to invest and what to do, and when it comes to like the dollar, buying dollars, buying gold, buying crypto, and all of that. So I feel like a lot of confusion is there. So I think it's great that you guys are doing this and you guys are educating people on how to invest their money wisely. सारा Sarah, हम लोग ने हम लोग webinar ने को schedule किया है and I would like to now go forward to him. And Basim, please introduce yourself. Like Sarah, many of us are now eager to hear from you and we have a lot of questions too. So Basim, please, the floor is yours. Assalamu alaikum ji. Thank you so much, Waleed. And Sarah, it's good to having you like here on the webinar. And thank you for everyone for joining in today on time. I head the whole commercial side here at Dow, and इस webinar का मकसद यही है कि हमारी community is growing by the day. Every day we have new people joining in on the platform, and people have a lot of questions about what Dow PropTech is doing. So एक ऐसी चीज है जो लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है times, and I'll try कि हम इसको simplify करें. Sarah, on the other hand, wanted to understand कि Dow क्या कर रही है from her investments point of view. So my plan was कि जो सारा को मैंने गाइड करना है और जो मैंने सारा को समझाना है डाउ किस तरह से चल रही है, वो चीज मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आई डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन so that everyone understands what DAO PropTech is set to do, and जो भी लोगों के common questions हैं वो सब address हो जाएं. So Sarah, if you can briefly tell us about how you've been looking at this industry, and if you can tell me what do you know about DAO PropTech अभी तक और आपको क्या चीजें समझनी. Sarah, you're muted. Oh, I'm so sorry. So, I mean, looking at the real estate industry, I feel like it's one of those things that even if things are stagnant for now, I think because we do a lot of research and we work with a lot of experts. So, inshallah, we are predicting, a comeback very soon. So, I think that is why I was so interested because I wanted to invest at the right time because, you invest when it's low and then you get the rewards when patience really rewards you like that. So that I wanted to learn more. Dusra ye tha, I found this concept of fractional ownership very interesting, and I felt like at this stage of my life, obviously where I can't buy
complete units, or I don't have the savings to really buy an entire office or buy an entire plot, I felt like, this is something that I can look into. So that is some, and I want to learn more about how exactly DAO is working, and how exactly do I get the rental yield, what is the capital gain, and if, for example, compared to other sources of investment and other ways of growing your wealth, how well does this model work? Perfect. Perfect. I explaining I it to you explaining it to you. slides Slides, that I prepared. preparing These slides are generally generally, which I generally which I generally share and I bring to my platform. So I'll just quickly share my screen and give me 10 good minutes in which I can explain what DAO PropTech is up to. So just a second while I share my screen. So I hope I'm audible and my voice is heard by all. Just give a thumbs up so that I know that it's heard by all. Perfect. So Sara, I'll start with the phenomena जिसके ऊपर DAO PropTech चल रही है, and that is कि tokenization है क्या? How does it work? Fractional ownership को आपने mention किया, that's essentially a part of tokenization. So एक मुश्किल word है जिसको interpret करना मुश्किल है, and let's try to break it down and understand कि ये होता क्या है. किसी भी एक physical चीज को अगर हम digital tokens में break down कर दें और उन डिजिटल टोकन्स को हम ट्रेडेबल बना दें ऑनलाइन, दैट इज टोकनाइजेशन. हम इसको थोड़ा सा रेलेवेंट करके समझते हैं और अपनी इंडस्ट्री से समझते हैं और इसको एक टेस्ट केस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक इनहेरिटेंस का केस है. अहमद एक इंसान है जिसने 4000 स्क्वायर फीट का घर एक रजिस्ट्री इंतकाल वाली जमीन पे लिया हुआ है. अहमद के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो उससे काफी ज्यादा जलते भी हैं. अहमद ने जब ये घर अपने नाम किया तो कुछ सर्टेन एरिया राइट्स अहमद को मिले. जब कोई बंदा कोई भी रियल एसेट खरीदता है तो एसेंशियली वो उसके एरिया राइट्स खरीदता है. अहमद के पास पहला राइट है कि वो इस घर को बेच सकता है, दूसरा राइट है कि वो इस घर से रेंट रिसीव कर सकता है जब वो इसको रेंट पे देगा, और तीसरा है कि वो इसमें खुद ऑक्यूपाई करके रह सकता है. अहमद अब चाहता है कि वो ये घर अपने 4 बेटों के नाम पे कर दे. अगर अपने 4 बेटों के नाम पे करना है तो इसके पीछे एक मैनुअल पेपर वर्क है. वी ऑल नो कि हमारे मुल्क के अंदर लोग इनसिक्योर फील इस वजह से करते हैं कि वो जो हो जाते हैं. सो अगर हम एक कन्वेंशनल एग्जांपल लें तो अहमद जब ये घर मैनुअली ट्रांसफर करेगा तो उसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा जिसकी बेसिस पे ये घर उसके 4 बेटों के नाम ट्रांसफर हो रहा होगा और एसेंशियली यही एरिया राइट्स उन सबको दिए जा रहे होंगे. अगर हम इसी सारी चीज को डिजिटल कर दें और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन यूज करते हुए करें, सो हम इस एक घर जिसके 4000 स्क्वायर फीट हैं इसके 4000 डिजिटल टोकन बना सकते हैं. इन 4 बेटों के नाम पे हम 1000 टोकन्स ईच रजिस्टर कर सकते हैं और ये ब्लॉकचेन के लेजर में हम लोग शो कर सकते हैं ये सारी चीज. यही टोकन्स अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडेबल बन जाए तो ये इसकी टोकनाइजेशन होगी. एसेंशियली जो हम डिजिटली कहना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर घर है जब भी ये बिकेगा तो हर टोकन होल्डर को उसकी सेलिंग के ऊपर जो है वॉट एवर द सोल्ड प्राइस है उसको इसके अगेंस्ट पैसे मिल जाएंगे. अगर ये रेंट आउट होगा तो वट एवर प्राइस जिसके ऊपर ये रेंट पे मिल रहा है वो सारा का सारा रेंट इन टोकन होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और जब इनमें से कोई एक बंदा उसको ऑक्यूपाई या पोजेस करना चाहता है तो एसेंशियली ही नीड्स टू बाय आउट द अदर 3. मैनुअली ये इंफॉर्मेशन को चेंज करना ये आसान है बट डिजिटली ऑन ब्लॉकचेन इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल. एंड आई विल टेल यू व्हाई. ब्लॉकचेन को अगर हम देखें और टोकनाइजेशन को अगर हम देखें एज अ टेक्नोलॉजी तो ये एक ऐसी चीज है जो वैसे दुनिया के अंदर बहुत आगे निकल गई है. और अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो 2 से 4 बिलियन यूजर्स हैं जो CBDC सिस्टम्स को यूज करें. Web3 की एक बहुत ज्यादा गेमर कम्युनिटी है जो इसको यूज करी. और मैं आपको 2 रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. दुनिया के अंदर
पेंटिंग्स को लोग टोकनाइज कर रहे हैं। सो मोनालिसा की पेंटिंग वैसे तो बहुत महंगी है और उसको कोई एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर आर्टिस्टिक हु हैव दैट डिजायर टू ओन अ पार्ट ऑफ दैट। सो लोगों ने पेंटिंग्स को भी टोकनाइज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट किया है, वहां पे वो उसे बाय करते हैं, दे होल्ड दैट, it's a moment of pride for them, and it's something that is, you know, emotionally they connect with, और उसको वो ट्रेड भी कर सकते हैं। सो इस तरह से पेंटिंग्स भी टोकनाइज हुई हैं। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं और हम सिर्फ दुबई तक जाएं, तो दुबई के अंदर इस टाइम पे गोल्ड टोकनाइजेशन पे काफी ज्यादा काम हुआ है। हमारे पास लिस्ट होने के लिए इट टुक 4 months. We have around 50 plus projects that are ready to be listed on the platform, but अभी तक हमने सिर्फ 7 projects ही list किए, and there's a reason why. We want to bring the best projects in town for our particular community, for our people, because we have people on our side. हम लोगों को extra liberty भी मिलती है to get extra benefits for them. हम लोग ज्यादा लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनने की वजह से वो इंफॉर्मेशन उन्हें दे पाते हैं जो कन्वेंशनली उनके पास अवेलेबल नहीं होती थी, और लेट अलोन के डिजिटल फोन की स्क्रीन पे उन्हें ये सब मिल रहा हो। सो बिफोर एनीवन इन्वेस्ट्स ऑन on our platform, they get all the legal documents जो उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं, they get all the transactional record of that project कि कितना बिका है, कब बिका है, because it's on blockchain, तो ये publicly list हुआ होता है। उनको periodic updates मिलती हैं इस project के ऊपर from the developer, because हमारे पास एक mass scale पे लोग हैं जिनके लिए वो developer accountable है। इसके साथ साथ we get the best price from that developer, and इसकी example ऐसे लेते हैं कि मैंने अपने लिए अगर एक पीसी में रूम बुक करना है, तो अगर मैं पीसी के से डायरेक्टली उस रूम को बुक करूंगा तो मुझे वो रूम एट टाइम्स महंगा पड़ता है, बट वेयरएज अगर मैं उसी रूम को एक बुकमी जैसे प्लेटफॉर्म से बुक करता हूँ जहाँ पे मैसेज जो है वो इकट्ठे हुए हैं और एक मैसिव इनफ्लो है लोगों का, तो वहां पे मुझे वो रूम सस्ता पड़ता है बिकॉज उस प्लेटफॉर्म ने अपने इन लोगों के लिए पीसी के साथ बार्गेन किया हुआ है। सेम वे वी गेट द बेस्ट प्राइस फॉर आवर पर्टिकुलर कम्युनिटी। इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अफिलिएट्स भी हैं जो लोगों को इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर गाइड करते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों को इसके ऊपर गाइड करना चाहते हैं, दे वांट टू शेयर इट, सो वी हैव अ होल रेफरल सिस्टम एंड कैंपेन फॉर देम, जिसके थ्रू वो अपनी कम्युनिटी में डाओ को प्रमोट कर सकते हैं एंड दे कैन यू नो इंक्रीज देयर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो डूइंग दैट। एट द एंड ऑफ इट, प्लेटफॉर्म का मकसद है कि ये कस्टोडियन, ऐसा कस्टोडियन जो अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हर प्रोजेक्ट का पूरा ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, पूरे ओनरशिप के प्रूफ्स मेंटेन करेगा, कब कौन बंदा क्या चीज ओन करता है ये एट ऑल टाइम्स इसको दिखाने के लिए अकाउंटेबल रहेगा। लोग अपने लिए हुए टोकन्स को ट्रेड कर सकें, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म उनको टूल्स भी देता है जिस तरह के मार्केट प्लेस। लोग अपने टोकन्स पे रेंट रिसीव कर सकें, इसके लिए वो एक मॉड्यूल भी देता है जो हमारा रेंटल मॉड्यूल है, जिसके तहत जो भी रेंट्स आ रहे होते हैं वो हर महीने के अपडेटेड ओनर्स की लिस्ट के साथ उनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म का तीसरा वर्जन है। हमने सबसे पहला वर्जन बना के अपने पर्टिकुलर एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे टेस्ट किया, फिर हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसको टेस्ट करना शुरू किया, और इस टाइम के ऊपर वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म वर्जन जो कि स्केलेबल भी होगा। हम लोग ऐप के लिए भी तैयार हैं अपनी, और हम मोबाइल ऐप जब लॉन्च करेंगे तो दैट विल बी अ गेम चेंजर। अब डाउ प्रॉपटेक के अंदर आपने इन्वेस्ट तो कर लिया, टोकन तो ले लिया, तो सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार मैं इस टोकन से क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या है, व्हाट डू आई बेसिकली डू विद इट। सो इफ यू कम इन यू सी, अच्छा एक प्रोजेक्ट आपको नजर आ गया, आपने ड्यू डिलिजेंस कर ली, आपने प्राइस देख ली, आपको उसको लोकेशन एवरीथिंग, इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस, इट इज इन योर रेंज, यू वांट टू बाय इट, यू गेट सम टोकन्स। अब आपने उनका करना क्या है, उन टोकन से हो क्या सकता है? This is the most common question that I get. So इसको भी हम एक इस डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। So ये एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर मल्टीपल टोकन्स हैं। मल्टीपल टोकन्स के हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स हैं अंदर। So let's consider कि ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। अगर आपने अभी कुछ टोकन्स लिए हैं, हम उसको नॉन डिमार्केटेड स्क्वायर फीट कहेंगे, which is our investment product. आप इन टोकन्स को हमारी मार्केट प्लेस के ऊपर बेच के प्रॉफिट ले सकती हैं इफ योर गोल इज टू बाय एट अ लोअर प्राइस, सेल एट अ हायर प्राइस। प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस चेंज होती रहती हैं एंड आई विल एक्सप्लेन कि वो किस तरह होती हैं जब हम आपके प्लान की बात करेंगे। अगर वो एक बनी हुई बिल्डिंग है और वो रेंट दे रही है, लेट्स सपोज
बात करना भी नहीं है. There is this fourth option जहाँ पे आप अपने tokens इकट्ठे करती जाएं and you can convert them into a whole apartment. That's an asset journey. That's a play, you know, that unlocks once you've started your accumulation play और आप इस सारी गेम में you're religiously invested into it. अब डेवलपमेंटल रेट सारा इसकी डिमांड तो बहुत है. वी नो कि हम जिन हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं वो भी रियल एस्टेट है. हम जिन घरों में जाके रात को रहते हैं, सोते हैं, जहां से निकल के काम करने के लिए निकलते हैं, वो घर वो भी एक रियल एस्टेट है. जहाँ पे बच्चे, हम लोग भी जहाँ से पढ़ा के आगे आए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो सारे इंस्टीट्यूट्स भी एक रियल एस्टेट है. और कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज जहाँ पे हम काम करते हैं, ये भी एक रियल एस्टेट है. सो रियल एस्टेट की डिमांड तो नेवर एंडिंग है और इट्स गोना स्टे देयर फॉरएवर. बट इसके अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा चीज तंग करती है वो ये है कि इस डिमांड को अवेल करने के लिए हमारे पास वो इनफ्लो ऑफ पीपल एट ऑल टाइम्स है नहीं जो इसको एंजॉय कर सके. बाय दैट आई मीन कि रियल एस्टेट के अंदर देयर आर ओनली सिलेक्टेड फ्यू हु यूज्ड टू इन्वेस्ट and reap the gains out of it. Centaurus मेरे सामने बना हुआ है. I live in Islamabad. I personally would have loved to invest into it, but मैं कर ही नहीं सकता था क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरे लिए बहुत हाई था. करोड़ रुपए तो मेरे पास थे ही नहीं कि मैं उसके अंदर डे वन से डालूं. उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, उनकी अगर मैं सक्सेस स्टोरी सुनूं उनसे, तो वो 3x 4x अपने पैसों को कर चुके हैं. बट that gain was not available for me. रियल एस्टेट लाइक सेंटोरस, इसकी डिमांड तो पूरे पाकिस्तान में हमेशा होगी, बट इसको अवेल करने की अपॉर्चुनिटी भी हम समझते हैं कि सबके पास होनी चाहिए. पाकिस्तान के अगर मैं कुछ नंबर्स आपको बताऊं, सो हमारी टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़ की है और हार्डली हमारे पास 1.5 से 2% ऑफ द पॉपुलेशन रियल एस्टेट ओन करती है, विच मीन्स के 40-50 लाख लोग हैं. डाओ प्रॉपटेक इस मिशन के साथ काम कर रहा है कि हमने इस रियल एस्टेट को एक्सेसिबल बनाना है 25 मिलियन लोगों के लिए, 2.5 करोड़ लोगों के लिए. इस सारी चीज को हमने इम्प्रूव करना है. इफ you know the masses will start pooling in and if the masses will get an opportunity to invest into the assets जो हमारे अगले 100 साल की रियल एस्टेट बन रही है, हमारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट भी स्पीड अप हो जाएगी and everyone will have that opportunity to reap that gain जो पहले कुछ लोगों के लिए अवेलेबल था. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी ने करनी है तो उसके मोटे मोटे 4-5 एवेन्यूज हैं. या जिस तरह आपने मुझे कहा, डॉलर लेके बंदा रख सकता है, बैंक में बंदा रख सकता है, गोल्ड लेके बंदा रख सकता है, स्टॉक्स लेके बंदा रख सकता है. क्योंकि डाउ जैसा प्लेटफॉर्म आ गया तो अब आप रियल एस्टेट लेके भी रख सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ दिस प्लान्स आउट. अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डेटा सेट कहाँ से उठाया है और किस तरह से उठाया है. बेसिकली मैंने एक बहुत नैरो स्केल के ऊपर इस सारी चीज को नहीं देखा. सो आई हैव टेकन 30 इयर्स का डेटा पिछले, उसको एनालाइज किया और उसका एक एवरेज रिटर्न लिया अक्रॉस एवरी पर्टिकुलर एसेट क्लास. तो डॉलर ने पिछले 30 सालों के अंदर अगेंस्ट पीकेआर 7.8% का एवरेज गेन हर साल में दिया. यानी अगर मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दूं तो हमारा डॉलर 25 रुपए का था इन 1992 एंड राइट नाउ ये तकरीबन 280 के राउंड अबाउट है. इसी तरह हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के नंबर्स हमने एनालाइज किए and this is how we came up with these percentages. So अगर आपने 10 लाख रुपए आज से 10 साल पहले डॉलर में रखे होते तो वो क्लोज टू 25 लाख बन रहे होते सारा. अगर आपने आज से 10 साल पहले अपने 10 लाख बैंक में रखे होते तो वो 25 लाख बन चुके होते. अगर यही 10 लाख आपने गोल्ड लेके रखा होता तो यू वुड हैव मेड अराउंड 4 मिलियन रुपीस. अगर स्टॉक्स में रखा होता बिकॉज इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट, तो एवरेज आउट करके आपने रफली 3.5 मिलियन बनाया होता अपने 10 लाख से. इसीलिए अगर हम इसको कंपेयर करें एक मैच्योर रियल एस्टेट से, जो कि एक बनी हुई बिल्डिंग है जिसके अंदर रेंट आ रहा है व्हिच इज आउट देयर लाइफ, उस केस के अंदर इट परफॉर्म्स प्रीटी सिमिलर टू गोल्ड. ये आपको तकरीबन जो इसने एवरेज आउट रिटर्न दिया है दैट्स आल्सो द सेम अराउंड 4.5 मिलियन. द रियल गेन्स लाई इन डेवलपमेंटल रियल एस्टेट जो बनती हुई बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे सरिया, सीमेंट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जिसके अंदर इन्फ्लेशन डे बाय डे हो रही है, जहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है. एक फॉर्म चेंजिंग एसेट है जो डे वन पे एक बेयर पीस ऑफ लैंड है और nth डे के ऊपर वो हंड्रेड्स ऑफ अपार्टमेंट्स हैं. वहां पे
सबसे ज्यादा गेम्स लाए करते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा लोग पैसे बनाते हैं. सो अगर आप इधर देखेंगी तो 28% की एवरेज ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर जो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट देती है. सो इधर 10 लाख लगे होते तो ये 1 करोड़ 20 लाख के करीब बनाते. सो दिस इज द मेन डिफरेंस एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी वांट टू ब्रिंग फॉर आवर मैसेज. अगर हम आगे जाके देखें, मैं आपको एक डाओ की सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ जिसपे आई एम वेरी प्राउड ऑफ. सो एलिमेंट्स हमारा वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स है और अभी तक इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है. इट्स वेरी क्लोज टू फिनिशिंग. एलिमेंट्स के अंदर ये जुनेद है जो कि एक डेली वेजर था जिसने हमारे साथ अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट की. 10 लाख रुपए इसने हमारे साथ इन्वेस्ट किए थे एलिमेंट्स के अंदर और he made the same amount of gain जो इस particular building के developer ने बनाया from the start of this project. इस point तक इस project में तकरीबन 2x पैसे सबके हो चुके हैं and he made that same gain with his amount regardless of कि वो उसकी amount और उसकी contribution इस building में compared to the developer कितनी थी. The idea is कि हम इस particular system को democratize करें और हम इस सिस्टम को बनाएं फॉर द मैसेज. एंड आई वांट टू रेप्लिकेट दिस सक्सेस स्टोरी फॉर एवरी पाकिस्तानी आउट देयर. सो इसके साथ साथ नाउ आई वुड वांट कि आपसे हम फीडबैक लें इस सारी चीज के ऊपर एंड पोस्ट योर फीडबैक. लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन प्लान समथिंग फॉर यू सारा. Okay, great. So Basim, the first thing I want to know is that what exactly is the process of investing or buying a token or a fraction of a project? Like, how exactly can I ensure that whatever money that I'm investing, that is safe? What are the returns that I'm getting? What exactly is the process? Like, just going through the portal, for example. So, So Sarah, starting good question. I think I think आपके आपके mic mic आवाज जो है वो. So, पहला क्वेश्चन आपका था कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह नेविगेट करोगे और आप किस तरह से वहां जाके प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे और चेकआउट करोगे. फॉर दैट सारा id.dowproptech.com आई विल रिक्वेस्ट वलीद कि वो यहाँ पे अटैच कर दे लिंक इन द कमेंट सेक्शन. जिस बंदे ने भी जाना है इस लिंक पे क्लिक करेगा, इस प्लेटफॉर्म को खोलेगा. इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करें. प्रोजेक्ट के कार्ड्स पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन कार्ड्स को आप एक्सप्लोर करेंगे तो विद इन दैट प्रोजेक्ट कार्ड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, प्रोजेक्ट में कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितना बिका हुआ है, कितना कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग. सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, उसके रिटर्न्स भी आपको वहां पे नजर आ रहे होंगे and then you can proceed with the checkout. If you feel stuck anywhere, you can message on our official number and you'll get a guided tour about the platform. हमारी tutorial video भी YouTube पे, you can just watch that and go through with it. Second question आपका था कि आपकी investment protected कैसे रहेगी. So एक तरीका तो common है ही और उसको बार बार mention करना would not make sense. I would rather focus on the procedural thing, जो procedural steps हम ले रहे हैं to mitigate risks, वो मैं आपको समझाना और बताना चाहूँगा. So पाकिस्तान के अंदर legal document से generally लोग जो है अपनी security associate करते हैं, वो तो आपको हर जगह मिलती है. But I personally believe कि जब तक आप एक process पूरी तरह ना समझें जिससे एक कंपनी अपना काम कर रही है, तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी डिफाइन नहीं होती. So for me and for us as a platform, हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं सबसे पहले एक लीगल स्ट्रक्चर से. जनरली पाकिस्तान के अंदर जब भी लोग रियल एस्टेट बाय करते थे, दे डिड नॉट नो कि वो जिस बिल्डिंग में बाय करें उसका लीगल स्टेटस है क्या, वेदर दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग इज अप्रूव्ड, ये इसकी ओनरशिप किसके पास है, मैं किसको पैसे दे रहा हूँ, मुझे कौन ये ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, कौन ये एरिया राइट्स दे रहा है. सो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया. हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो एक सेपरेट कंपनी बन के रजिस्टर होते हैं. उनका SECP का डॉक्यूमेंट ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म. उनका FBR का डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म. उनके लोकल अथॉरिटी के NOCs आर अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म ताकि डे 1 के ऊपर ये लीगल चेक्स आप पूरे कर लें.
once you pay directly to that developer, you pay directly to that company जिसने उस project की land को own किया. आप किसी intermediary entity को पैसे नहीं देती, किसी middleman को पैसे नहीं देती, so you're not at risk. आपके पैसों को सेफगार्ड करने के बाद आपको आपके पैसों का सही इस्तेमाल हो, इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है जिससे आप ये चीज देख सकती हैं. सो हमारे प्लेटफॉर्म पे डेवलपर आपको हर 1 महीने 2 महीने पीरियोडिक अपडेट्स अपने पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर दे रहा होगा कि पब्लिक में जितने भी मेरे स्क्वायर फीट्स बिक रहे हैं उसका पूरा एक लेजर सबको नजर आ रहा है, उसके अगेंस्ट में कितना काम कर, मेरे क्या माइलस्टोन्स हैं और मैं उन माइलस्टोन्स को किस तरह से पूरा कर रहा हूँ. थर्डली, इस सारी चीज को बाय करने के बाद सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस है जो कि इवॉल्व करती जा रही है. उस मार्केट प्लेस पे अभी तक हम लोगों ने 80 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी लोगों को दी है. 30% का हमने एवरेज गेन दिया है अपने डेवलपमेंट वाले अर्ली स्टेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर. इन नंबर्स के साथ सारा हम लोग इस मार्केट प्लेस को इवॉल्व करते जा रहे हैं. अभी भी देयर इज सम वर्क दैट इज ऑनगोइंग ऑन दैट मार्केट प्लेस एंड वी प्लान ऑन इम्प्रूविंग इट फर्दर. सो जब आपने बेचना हो तो आपके लिए एक एग्जिट प्लान और एग्जिट स्ट्रेटजी भी ऑलरेडी रेडी है. सो दिस इज हाउ वी सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट एंड टू एंड, आपके बाइंग पॉइंट से लेके आपके सेलिंग पॉइंट तक. थर्ड क्वेश्चन आपने पूछा था रिटर्न का, इफ आई रिकॉल राइट. सो सारा रिटर्न जो है बेसिकली सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं कि रिटर्न मिलेगा कैसे. इफ आई बाय अ टोकन तो मुझे उसमें से किस तरह से रिटर्न मिल रहा है. सबसे पहले हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक बनी हुई बिल्डिंग है उसका टोकन मैं खरीदता हूँ, या एक बनती हुई बिल्डिंग है उसका टोकन मैं खरीदता हूँ. तो इन दोनों में डिफरेंट सिनेरियोज हैं. एक बनी हुई बिल्डिंग क्योंकि इट्स बिल्ट अप, वो किसी ब्रांड को लीज्ड आउट है, वो ब्रांड भी वहां पे मेंशन्ड है, उसका रेंटल एग्रीमेंट भी प्लेटफॉर्म पे मेंशन्ड है, वो कितना रेंट दे रहा है वो भी वहां पे मेंशन्ड है. सो आप जब वो टोकन होल्ड करेंगी तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिटर्न जो आपको मिलेगा वो रेंट मिलेगा. ठीक है. सो ईच मंथ आपके टोकन की होल्डिंग की बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में जो इस प्लेटफॉर्म के साथ आपका लिंक एक हैसल फ्री तरीके से आपको रेंट मिलता रहता है. ईच ईयर दैट रेंट विल बी इंक्रीमेंटेड. जब वो रेंट बढ़ा करेगा आपकी मंथली रेंटल अमाउंट भी बढ़ जाया करेगी. सेकेंड वे थ्रू विच यू कैन गेट रिटर्न इज बाय सेलिंग योर स्क्वायर फीट्स, सेलिंग योर टोकन्स. सो एक आपने एक्स प्राइस पे परचेज किया है, व्हेन यू बाय एंड होल्ड रियल एस्टेट, जब एक प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ रहा है, उसकी लैंड वैल्यू बढ़ी है, उसकी टर्मिनल प्राइस बढ़ी होती है. सो आपने एक एक्स प्राइस पे बाय किया और उसको वाई पे जब आप बेचेंगी तो आप एक कैपिटल गेन या प्रॉफिट बनाती हैं, विच इज एसेंशियली द प्ले जो रियल एस्टेट का मेजर प्ले. पीपल बाय, होल्ड एंड देन सेल. सो टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स. सेकेंडली, अगर आप बात करें एक बनती हुई बिल्डिंग की, तो उसके अंदर तो कोई भी टेनेंट नहीं है, उसके अंदर अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रही है. सो उसके अंदर एक ही तरह का रिटर्न आपको मिल सकता है, which is कि आप उसको बाय करें at a lower price and you sell it at a higher price through our platform, through our marketplace, through our team which facilitates you doing that. So this is how I will break it down. अब अगर दोनों कैटेगरीज को हम एवरेज नंबर्स ले लें तो 28 से 30% का गेन डेवलपमेंट वाली साइड के ऊपर है, और जो बिल्ट अप एसेट्स हैं वो अराउंड 20-22% का रिटर्न आपको देते हैं. This is how you can differentiate between them both कि किसके लिए मुझे जानना चाहिए. Okay, thank you so much, Basim. So since obviously you're the expert at this and I'm still learning, I would love to know that, okay, for example, if I want to invest right now, what is the best way for me to utilize this platform, and how can I get the best sort of returns and have a very seamless sort of an experience? Okay, so I think thank you. So I think कि सारा एक एस्पेक्ट जो बहुत की एस्पेक्ट है रियल एस्टेट का, उसको मैं सोचता हूँ. So I paint a picture of Islamabad in my head, and if I have a wish list, I want something in Centaurus, I want something in One Constitution, I want something in Blue Area, but I can't have all of that, right? Abhi tak. I think the key to having a great portfolio and maximizing your returns is diversifying your portfolio. पहले रियल एस्टेट के अंदर आपको अगर अपनी प्रॉपर्टीज डाइवर्सिफाई करनी थी तो आपके पास 50 करोड़ या अरब रुपया हो, तब जाके आप इस तरह की प्रॉपर्टीज ले सकते हो जिनके मैंने नाम लिए.
नाउ विद दिस प्लेटफॉर्म आप 10 लाख से भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप 50 लाख से भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एंड फ्रॉम डे वन आप यू डोंट प्लेस ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सो दिस इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. एक थॉट प्रोसेस के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा. व्हेन पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, अक्सर फ्रेश स्टार्टर्स लाइक मी, फ्रेश स्टार्टर्स लाइक यू, हमारे बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं. We all want to go to Coldplay's concert that is happening in Dubai next year. But real estate के अंदर जो गेम है वो कंपाउंडिंग की है, और वो कंपाउंडिंग बेस्ट तब काम करती है जब आप लंबे टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो. अगर हम इस टाइम पे देखें कि सारे लोग हमें उन दादाजी की एग्जांपल देते हैं जिन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची थी, तो उसके लिए बड़ा टाइम लगा था जिसमें उन्होंने नहीं बेची थी. सो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आपका, हम आज जो रिटायरमेंट प्लान बनाएंगे, जो आपको मैं कंसल्टेंसी दूंगा, वो 20 साल का प्लान होगा. सारा इज इन हर 20s, सारा विल रिटायर इन हर अर्ली 40s. कैसे रिटायर करेगी, कितनी अमाउंट सेव करेगी, किस तरह से इसको लेके चलेगी, विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. बट दिस इज व्हाट आई वांट यू टू एम फॉर. सो अगर मैं कंपाउंडिंग हैपेंस अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. फिटनेस की बात करूं, कोई भी बंदा जिम में जाए, एक दिन 100 kg का डंबल उठा के बॉडी नहीं बना सकता. इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड. इसी तरह वेल्थ बिल्डिंग भी जो है, इट्स अ कंसिस्टेंट वे ऑफ बिल्डिंग योर वेल्थ ओवर टाइम. सो आपको जो मैं प्लान दूंगा वो लॉन्ग टर्म दूंगा. हाउएवर अगर कुछ लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देख सके तो दे कैन अचीव दैट एज वेल. Okay, great. So let's get into it. Right. My screen will be. And Sara, हम लोगों ने नंबर, feel free to participate. So Sara, this is जिसके अंदर आप डाइवर्सिफाई करूंगा. तो initial investment monthly 30,000 for 20 years अगर हम करें इसको, 20% की ग्रोथ है जो हम अपने एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से आराम से अचीव कर सकते हैं, स्टेइंग ऑन द प्रूडेंट साइड, नॉट पेंटिंग अ वेरी रोजी पिक्चर. ऑब्वियसली इससे अगर इसको बीट करेगा तो वी ऑल विल बी हैप्पी, बट वी ऑल वांट टू स्टे ऑन द प्रूडेंट साइड. सो सारा, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करो और आप 30,000 हर महीने अपनी सेविंग से साइड पे करती रहो, आपके 20 सालों के बाद जो आपने मुझे पैसे दिए होंगे, आपने जो इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किए होंगे, वो 8.2 मिलियन होगा, 80 लाख रुपए. और ये इसकी जो वर्थ होगी, या ये जितना इस 20% ग्रोथ के साथ बन चुका होगा, वो 11 करोड़ रुपए बन चुके होंगे. 118 million. This is what compounding does when we keep it for long term and when we keep it for longer run. This particular asset class, इसके अंदर लोगों ने अपनी generations की wealth store की है, and when people invest in real estate, they generally plan 5 years, 10 years. But since you're in your 20s, I'm in my 20s, I'm closer to my first 4-5 years वाला mark जिसमें मैं अभी तक अपनी जर्नी में यहाँ पहुंचा हूँ. So we all need to target, जो अभी start करें, at least 10-15 साल, जिसमें हम लोग अपनी retirement का बहुत अच्छा plan निकाल सकते हैं. So if you want to change some numbers, I'd love to show कि ये किस तरह से behave करेगा. Okay, so if we keep the initial investment the same, but if we increase the monthly savings to, for example, 100K. So Sara, at the end of 20 years. You guys are making me very rich. I'm very happy. Is that enough to retire? Ji. So is that enough to retire? That is definitely enough, and I got very excited about this entire prospect after looking at it. I think once you see the numbers, you kind of really understand what you're in for, and it's also a very simple process, because saving an initial investment and then contributing to it monthly is somewhat, wo jo barriers of entry to real estate hote hain na, wo काफी हद तक
नीचे आ जाते हैं. And I also feel like being in your 20s, it's also important to have ease when it comes to saving, because we're always thinking about saving money, but we don't have enough avenues, and then we end up spending all of it. So I think having such an opportunity is great, because not only is it easy, it's accessible, it's credible. And I think the best thing about you guys is that you give all the documentation, which is, I think, very important, especially with an opportunity like this. So, one thing that I would mention, because I saw a lot of crying emojis when I mentioned 20 years wala plan. That 20 years plan is for Sara. So, our platform allows people we understand कि लोगों के short term goals होते हैं. People save so that they can buy a new car next year. People save so that they can upgrade their laptops, their phones next year. And they want to make those quick gains as well. So उन quick wins के लिए भी हम लोगों ने system design किया हुआ है. And that system is कि once you invest into any of the project, हमारे different projects में different developers की different timelines हैं जिनमें आप liquidate कर सकते हैं अपनी investment. For example, अगर एक बनी हुई building है उसके अंदर आप उसको buy करके 6 महीने बाद भी बेच सकते हो. Whereas अगर एक building under construction है और बहुत early stage है, उसके अंदर gain सबसे ज़्यादा होगा, but then there will be a lock-in period for 2 years. 2 साल तक आपने hold और सब्र भी करना है. अगर एक midway construction stage project है तो साल का lock-in period है, and साल के बाद you are free to sell. So this is how the system operates, and this is all from my side. Can we also see if, for example, on the same model, if I was saving for example, 5 years? Sure. Sure. So, wait a minute. Sara, 5 years, you're making 13 million, right? Let's see 5 years. Yeah. Which is the this. तो सारा तकरीबन 7 million आप लगाओ, 13 million आपको मिलेगा in 5 years. Okay, I think that should make a lot of people happy. So when it comes to हर किसी का एक personalized plan होता है. हर किसी के लिए इसीलिए personalized consultation sessions भी available होते हैं and all. Since we had a discussion about your retirement plan, ये particular plan design तो उस तरह से let's not map it on everyone else, but I'll share this with you post this call. You should definitely review it and we'll have a discussion over it. Meanwhile, I'll thank you for attending this webinar. I had fun explaining everything to you. If anything's unclear, I'd love for you to ask, and if not, many people have joined in. They've been kind enough to give us their time. मैं चाहूँगा वलीद उनके इनके जो questions हैं वो भी मेरे से पूछ ले और अगर कुछ आने पे address करें. No, Basim, thank you so much. I think it was such an interesting conversation, and I'm so glad that things like these are happening in our country. And it's very important to kind of inclusive opportunities are very important. Opportunities to हमेशा से real estate में रही हैं, but inclusive opportunities are very important. So I'm really, really grateful that you guys did all of this for me, and I'm very excited for my retirement plan. Thank you, Sara. Thank you, Sara. Thanks. Thank you guys. Thank you, Sara and Basim, for this wonderful session. I personally found this webinar to be very interesting. I resonated a lot with Sara's questions as well. But I understand काफी लोग impatient हैं और उन्होंने भी कुछ सवाल हमारे साथ पूछे हुए स्लाइडों पे. तो I'd like Basim to answer some questions. I'm going to present the screen now. अगर किसी के भी सवाल हैं तो वो कमेंट सेक्शन में चले जाएं. वहाँ पे हम लोग ने अपने प्लेटफॉर्म का लिंक भी भेजा हुआ है जिस पे बासिम ने पूरी डिस्कशन की थी. हम लोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है ताकि अगर किसी ने हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट करना है दे कैन डू दैट इजीली. एंड थिर्डली हमने स्लाइडो का लिंक भी कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन क्वेश्चनिंग वो स्लाइडो के लिंक पे जाके सवाल पूछ लें. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 1 minute. जिन्होंने पूछना है वो पूछते हैं. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन इन द नेक्स्ट मिनट.
One good thing about Slido is that जितनी भी ऑडियंस है वो क्वेश्चंस को रेट कर सकती है और वो अपलोड कर सकती है, जिसके ऊपर हम लोगों को पता लग जाएगा कौन से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या जो बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं. सो मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है. Basim, I'd like to give you the floor now, and नहीं डाले हुए थे. So please go ahead. Thank you. Thank you, Waleed. So पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, which is कि लीगल पोजीशन इस फ्रैक्शनल ओनरशिप की क्या है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, बाइंग एंड इनहेरिटेंस. सो लीगल पोजीशन जो है ना, इसकी मैंने जिस तरह अपनी टोकनाइजेशन की एग्जांपल में एक्सप्लेन की, चाहे आप घर लो, चाहे आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लो जो एक बनती हुई बिल्डिंग है और उसके अंदर आपने सिर्फ एक डाउन पेमेंट की है, चाहे आप एक फाइल खरीदो ऑन अ लैंड जहाँ पे अभी प्लॉट्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, यू डोंट नो वेयर दैट फाइल इज एंड वेयर दैट प्लॉट इज, आप एरिया राइट्स ले लो. वो एरिया राइट्स क्या हैं, वो डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करते हैं. सो एग्जांपल वुड बी कि यार आपने अगर एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर अपनी डाउन पेमेंट की है, तो आपके एरिया राइट्स ये होंगे बेसिकली कि आप जब भी ये अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करोगे, you'll possess this unit. ये यूनिट पोजेस करने के बाद you'll get रेंट आउट ऑफ इट, वो राइट भी आपके पास है. इसकी ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर होगी, वो राइट भी आपके पास है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इसी तरह जब आप कुछ स्क्वायर फीट्स भी लेते हो, तो आप उस डेवलपर के साथ एक एरिया राइट्स का एग्रीमेंट तय कर रहे हो. अगर वो एक पूरा यूनिट है तो आपके लिए पोजेशन भी अनलॉक होगी, रेंट भी मिलेगा आपको, आप उसको बेच भी सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग एक्वायर भी कर सकते हैं व्हाटसोएवर. अगर आपके चंद स्क्वायर फीट है तो डे वन पे ही आपके एरिया राइट्स डिफाइन हो गए कि जब तक आपके स्क्वायर फीट से पूरे यूनिट या अपार्टमेंट के बराबर नहीं होते, आप पोजेस तो उसे नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी सारी चीजें कर सकते हैं. जस्ट लाइक एक पूरे यूनिट वाला बंदा, आप अपने एरिया राइट्स यानी आप अपने स्क्वायर फीट्स को बेच सकते हैं, आप उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से रेंट रिसीव कर सकते हैं एंड ऑल. इट विल बी अ मैनेज्ड प्रॉपर्टी. वो डेवलपर आपके साथ एग्रीमेंट में एग्री करके सारी चीज करेगा. सो अगला क्वेश्चन अबाउट विड्रॉल था. सो Before Basim, you move on. आपने काफी देर से अपना हाथ खड़ा किया है. Ready you to point towards the comment section. वहाँ पे हम लोगों ने अपना WhatsApp नंबर भी डाला हुआ है. If for any reason you मैंने आपको बताया के ऊपर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन तो उसमें आपको डेवलपर शायद 2 साल तक अलाउ ना करे कि आप उसको बेचें, बिकॉज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अक्सर सेकेंडरी लीगल एक टेक ये प्लान कर रहे हैं डेवलपर को और लोगों को. तो एंटी बंदे के नहीं, एंड देयर इज अ रीजन कि ये ऐसे नहीं. हर प्रोजेक्ट एक सेपरेट कंपनी है, वो कंपनी एससीसीपी के साथ भी रजिस्टर्ड है, वो लोकल लैंड अथॉरिटीज के साथ भी उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन है, और वो सब प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली पोस्टेड है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले ये सारी चीज देख सकें. जब एक सिंगल पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी होती है और लोगों ने किसी और एंटिटी को पैसे दिए होते हैं, तो एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर कोई भाग गया तो क्या होगा, तो उस कन्वेंशनल केस एंड पॉइंट में तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में जब आप पीस ऑफ पेपर लेके जाते हैं तो वो आपने जिस एंटिटी या जिस कंपनी से लिया होता है उसके नाम पे जमीन ही नहीं होती.
इन आर केस आप जिस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट को भी चूज करेंगे, उस प्रोजेक्ट की लैंड उस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर्ड होगी, उसका अलॉटमेंट एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएगा बिफोर योर इन्वेस्टमेंट। सो अगर डेवलपर भाग भी जाए, वो प्लॉट या बिल्डिंग को जेब में डाल के नहीं भाग सकता, वो यहीं पे रहेगी, वो उस कंपनी के नाम ही रहेगी, एंड दैट कंपनी, उससे आपका डायरेक्ट एरिया राइट्स एग्रीमेंट हुआ हुआ है, एंड दैट fortifies your claim to ownership. So I think this should answer your question. So agla question hai, once I was advertised about Dow PropTech, I opened the project and called the main building owner, and they said we don't have any project on Dow PropTech. I can hardly recall anything regarding this. हम लोगों ने बड़ा ही we're very picky with who we work with, and अभी तक अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, 7 projects are over there, 3 are done, 2 projects are very near completion right now, और हम लोग अब एक्सपैंड करना चाहते हैं टू 8 डिफरेंट सिटीज। सो हमारा एक बहुत ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है जिसके बाद हम गुजरते हैं। आई डोंट नो कोई मिसकम्युनिकेशन या कंसेप्शन होगी। सो एनीवेज वलीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। So, Asim, there's a question peer-to-peer. about the peer-to-peer sale purchase facility available. Yeah. So I told everyone that our platform is constantly, going through major upgrades. तीसरा वर्जन है ये इस प्लेटफॉर्म का, ऐप भी बना रहे हैं, सारी चीज बना रहे हैं। हम लोगों ने पहले एक लिस्टिंग की सर्विस बनाई हुई थी जिसके ऊपर लोग आके ऑर्डर को लिस्ट करते थे, और फिर उसको कोई बाय करना चाहे तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता था। हाउएवर, लर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स, लर्निंग फ्रॉम क्रिप्टोज, we wanted to create a whole marketplace, not just a listing service. इस सारी चीज को enable करने के लिए अपनी peer to peer transactions, अपनी marketplace, we are coming up with a whole plan जहाँ पे bid की option भी हो, sell की option भी हो, एक market के अंदर liquidator भी बैठा हो जो liquidity का fund डाल के specifically for this marketplace बैठा हो, और वहाँ पे जो भी orders आ रहे हो उनके साथ अपनी पर्सनल जो भी डील है वो वहां पे बना रहा हूँ। सो वी आर गोइंग थ्रू दिस फेज, प्लीज बेयर विद अस फॉर अ लिटिल व्हाइल। आई एश्योर यू कि अगले 1 से 2 महीने में आपको बहुत इम्प्रूव मार्केट प्लेस और लिक्विडिटी के लिए काफी से नए एक्साइटिंग फीचर्स नजर आएंगे। सो एक अगला जो क्वेश्चन है, इट्स अबाउट द फायर कैलकुलेटर। ओके, इंटरेस्टिंग। सो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट और 30,000 रुपए अगर किसी ने करने हैं, मैं स्क्रीन So anyone who's interested in understanding the fire calculator, the working, everything, we'd be happy to schedule one-on-one sessions with them. हम लोगों ने comment section में ही अपने DAO का WhatsApp number डाला हुआ है। Please reach out to us on WhatsApp so that we can reach out to you again, and फिर हम लोग वहाँ पे आपको fire calculator दिखा देंगे। We have a lot of urgent and important questions that we need to be answering right now. So let's just skip ahead to the next question. Thank you. So I would definitely want कि जो फायर कैलकुलेटर में जो भी बंदा इंटरेस्टेड है, वलीद, जब भी इनका मैसेज आता है, whenever he gets in touch with us over WhatsApp, he or she, एक तो इनके साथ फौरन से प्लीज मार्क के हम प्लान शेयर करें एंड get some extra reward for someone who wants to take a look at this. Secondly, खैर, अब एक क्वेश्चन और मुझे यहाँ पे नजर आया था, which was about the valuations कि Dow PropTech किस तरह प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करता है। So हम लोगों ने एक MIT का कोर्स किया था जो रियल एस्टेट वैल्यूएशंस के ऊपर था। I am an engineer, I graduated from GIK. It did not make any sense to me when people said things like कि real estate में location matter करती है, and बस खरीद लो, रख लो, and it will go up. सो इस सारी चीज को वैल्यूएट करने के लिए हमने MIT का एक कोर्स किया था जिसमें वी लर्न रियल स्टेट वैल्यूएशंस के 5 तरीके। उनमें से एक मैं आपको अभी बताता हूँ, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, प्लीज गेट इन टच विद आवर टीम, वी विल शेयर दैट कोर्स विद यू। अगर आपको उस पे कंसल्टेशन चाहिए और डिस्कशन करना हो, माय टीम इज हियर। तो एक तरीका ये है कि हम एक बने हुए एसेट को उसके रेंट के साथ वैल्यूएट करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज अपनी टोटल वैल्यू का 5% देती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अपनी टोटल वैल्यू का 3% देती हैं। व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर एक दुकान है जो 40,000 किराया दे रही है,
तो ये 40,000 किराया अगर मैं साल पे देखूं तो 4,80,000 है, और अगर 5% मैं निकालूं तो 96 लाख रुपीस की दुकान है जो अपना 5% यानी 4,80,000 साल में दे रही है और महीने का 40,000 दे रही है। इसी तरह अगर एक घर के उस पे देखें तो 1,60,00,000 का घर है जो 3% अपनी टोटल वैल्यू का रेंट में दे रहा है, यानी वही 4,80,000 और 40,000 महीने का। इसीलिए जब लोग रेंट के एस्पेक्ट से चीज लेते हैं तो दे प्रेफर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि कम पैसों में वो उतना ही किराया अचीव कर पा रहे होते हैं। सो रेंट से हम इवैल्यूएट कर पाते हैं। दिस इज समथिंग जो कि आप अपने लिए भी जब किसी जगह चीज खरीदने जाएं तो अप्लाई कर सकते हैं। सही है। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, so this is an important question as well. How DAO secures investment as an investor? Does it have any shares in the project? And what kind of model is it for DAO PropTech in terms of earning? ओके, सो बेसिकली जब भी आपने खरीदना है, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से भी खरीदना है, जो भी आपको पसंद है, सारी डिटेल्स आपको प्लेटफॉर्म पे नजर आ जाएंगी। आवर प्लेटफॉर्म इनेबल्स एंड अलाउज यू कि आप अपनी जर्नी 1 स्क्वायर फुट से भी शुरू कर सकें। यू बाय इनटू दैट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो एक बनी हुई बिल्डिंग है तो आप यू कैन डेफिनेटली अर्न एज वेल। उसका जो रेंट है वो हर महीने आपके लिंक बैंक अकाउंट में आता रहेगा। जब उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी यू कैन सेल दैट ऑफ एज वेल थ्रू आवर मार्केट प्लेस, जिसका मैंने आपको पूरा ट्रेंड बताया कि हम लोगों ने 80 करोड़ प्लस लिक्विडेट किया है मार्केट प्लेस के ऊपर। हम लोगों का 30% एवरेज गेन है जो हम लोगों को दे चुके हैं। एवरेज टाइम ऑफ लिक्विडेशन भी अराउंड 30 to 40 डेज था जो हमारा था, विच इज दीज आर फिनोमिनल स्टैट्स कंसिडरिंग कि रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट क्लास थी जो कि 3-4 महीने बिकती भी नहीं थी। सो बाकी यही तरीके हैं इन विच यू कैन अर्न रिटर्न्स। सो अनदर क्वेश्चन विच इज कि रीट से ये किस तरह सिमिलर है या डिफरेंट है। सो रीट जो है वो मैं सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। सो रीट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो एक पेपर एसेट है। सो वहां पे एक फंड बन जाता है जो फंड कलेक्टिवली बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी हो सकती है, वो बनी हुई बिल्डिंग भी हो सकती है। वहां पे बेसिकली उस बिल्डिंग के शेयर्स बन जाते हैं, ठीक है, और उन शेयर्स को लोग खरीद सकते हैं, उन शेयर्स को इसी तरह ट्रेड कर सकते हैं। बट इट्स अ पेपर एसेट एट द एंड ऑफ द डे। सो जो मैंने आपको चीज समझाई, इसमें आप जो स्क्वायर फुट लेंगे वो ट्रेड भी रीट की तरह हो सकता है, वो डिविडेंड या रेंट भी आपको रीट की तरह दे सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा मेजर प्ले जो रियल एस्टेट का है कि आप उस टोकन को कन्वर्ट करके एसेट अपने नाम कर सकें, एक पूरा अपार्टमेंट अपने नाम कर सकें, एक पूरी शॉप अपने नाम कर सकें। ये चीज रीट नहीं करती। एट द एंड ऑफ द डे इट स्टेज पेपर एसेट, whereas our product becomes or converts into a tangible asset for anyone who completes his asset journey. एक और क्वेश्चन है कि स्टेक से ये किस तरह सिमिलर है या डिफरेंट है। सो स्टेक का मैं थोड़ा बहुत आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गेट स्टेक जो है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चरिंग का भी बहुत ज्यादा फर्क है। बेसिकली गेट स्टेक करता ये है कि वो एक प्रॉपर्टी को खुद ओन करता है, खरीदता है लोगों के फंड से। उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आता है वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जब उस प्रॉपर्टी को बेचता है तो कुछ प्रॉफिट का शेयर खुद रखता है और कुछ लोगों को देता है। डाओ प्रॉपटेक इस तरह की कोई भी चीज नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास काफी ज्यादा लोग हैं। इन लोगों की मदद से और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास सप्लाई साइड पे डिफरेंट डेवलपर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। लोग उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों को हमारे एंड से सर्टिफाइड वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ड्यू डिलिजेंस हुई भी होगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे, बेस्ट प्राइस उनको मिलेगी, एंड दे कैन बेसिकली इन्वेस्ट इनटू दैट। अब जो डिफरेंस है वो ये है कि गेट स्टेक जो है ये सारी चीज मैनुअली करती है, हम ब्लॉकचेन पे करते हैं विद द मोस्ट एडवांस टेक आउट देयर। सेकेंडली गेट स्टेक खुद ओन करती है, हम खुद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते और हम अपने शेयर्स या अपना मार्जिन उसमें से कोई भी नहीं रखते। Whereas leveraging the platform play, हम अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बेस्ट डील नेगोशिएट करते हैं, बेस्ट प्राइस अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं। वी मेक श्योर कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड प्राइस है वो मार्केट में नहीं है। थर्डली गेट स्टेक सिर्फ बनी हुई बिल्डिंग्स के ऊपर ये मॉडल चलाती है और इस सारी चीज को करती है, विच इज
कि एक मेच्योर एसेट जिसे हम कहते हैं, वेयर एज वी बिलीव कि जो असल गेम है, जो असल गेन्स लाए करते हैं वो बनती हुई बिल्डिंग्स में लाए करते हैं, जिस तरह मैंने आपको सेंटोरस की एग्जांपल दी। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं जो आप इसको देख सकते हैं। So इसके अलावा क्या है, so the property we own, do we hold the share virtually only? If I buy a share, do I get possession letter from LDA? What do we have? So हसीब भाई, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अपने लाहौर की प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह क्यूब लाहौर है, ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बनी हुई है, जो रेंट दे रही है, इट कम्स अंडर लाहौर कैंट पोर्ट। अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ स्क्वायर फीट खरीदे हैं अभी, तो ये प्रॉपर्टी रेंटेड आउट है, आपको अपने स्क्वायर फीट्स के ऊपर रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आप अपने स्क्वायर फीट बढ़ाते हैं तो आपका रेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्क्वायर फीट्स को बेच भी सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अगर एलडीए या कैंट बोर्ड से ट्रांसफर चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर फीट्स का क्राइटेरिया होगा कि लेट्स सपोज आपके पास जब 100 स्क्वायर फीट पूरे हो जाएंगे, आप वहां से जाके एक्स नंबर और यूनिट अपने नाम ट्रांसफर करा लें। सो आप अपना सफर 8 फुट से शुरू कर सकते हैं इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। दिस इज द इनेबलमेंट एंड एम्पावरमेंट, और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दैट जर्नी। सो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि आप अपनी मंथली सेविंग्स इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम 30K to 60K। सो यू कैन डू दैट एंड आप ये सारी चीज अचीव कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब के सब लोग इस पर्टिकुलर वेबिनार के बाद जाके हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेज करें। जितने भी लोग प्लेज करेंगे उन सब के लिए और सबको एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा एज अ रिवॉर्ड। जो भी पर्सनलाइज्ड प्लान आपको चाहिए, our team will get in touch and our team will share that with you, and after consulting them you guys can start your asset journey. So I think Waleed, most of the questions ho gaye and our time for the webinar is also up. So I'll thank everyone for joining in and tuning in today, staying with us abhi tak. I had a very nice time explaining everything to everyone. So we have a couple of hands raised. In case you've missed this out, हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म का लिंक भी डाला हुआ है। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, प्लीज हेड टू द कमेंट सेक्शन, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे आप हम लोग को रिप्लाई कर सकते हैं। I understand that a lot of people have a lot of questions still, but in this 1 hour session we could not, we weren't be able to answer every questions out there. So जिसने भी करना है वो हम लोग को व्हाट्सएप ही रीच आउट करे। And it was very, very interesting webinar. Thank you, Basim, very much for coming in and explaining how Dow PropTech is changing the financial situation for a lot of people in Pakistan. Thank you, Waleed. Thank you everyone for attending. Also, while we are here, हम लोगों ने एक फीडबैक फॉर्म भी पेस्ट किया हुआ है कमेंट सेक्शन में। We'd like everyone to head to the comment section ताकि वो फॉर्म के ऊपर अपना फीडबैक डाल सकें, ताकि we can improve our webinar as we move forward. Thank you very much for everyone joining in. Allah Hafiz.